Good morning, dear students. This is your teacher Neela Mehlawat, and today we'll start with a new chapter. That is chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Okay? I hope you are ready. You are keeping your books and notebooks ready. Okay, let's start then. Now, first of all, let me ask you some questions. Now, if you look at your wardrobe, if you open your almirah, you will find there are some sweaters, there are different kinds of clothes, shirts, pants, trousers, isn't it? T-shirts, jeans, isn't it? And some of these clothes you wear it daily. Some of these clothes you're keeping for to be worn in the parties or in marriages. Yes? Yes. Some of these clothes, they belong to some renowned brands. And they are, you have spent a lot of money on that. The quality is nice. You've given a good price as per the style of your clothes, isn't it? But have you ever wondered how these clothes are being made? What are these clothes made up of? Yes, the clothes, they are made up of the different types of fabrics, the different types of fibers. Okay, the clothes, they are made up of fibers. So let's understand what are the different types of fibers which are there. So there are two different types of fibers. One is a natural fiber, another is synthetic fiber. Okay, natural fibers are like cotton, silk, wool. The fibers that we obtain from plants and animals. So जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं बेटा, जिनसे हम क्लोथ्स बनाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स. ओके, राइट? एंड दे आर नेचुरली प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. दिस सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स. Okay, synthetic fibers and the man-made fibers. Now these are produced with the help of chemicals. ये हम बनाते हैं with the help of certain chemicals. For example, polyester is there, rayon is there, acrylic is there. So जो synthetic fibers हैं बेटे, अगर हम इन्हें compare करते हैं natural fibers से, so synthetic fibers जो है उनकी durability ज़्यादा होती है, means they remain durable for a long period of time. They are comparatively cheaper, सस्ती होते हैं ये natural fibers की comparison में, and these are acquired from the petroleum products. और इनके synthesis में एक बहुत complex procedure use किया जाता है. Okay, so अगर हम summarize करते हैं बेटा, let's summarize up. So there are two different kinds of fibers. One is natural fiber, another is synthetic or man-made fiber. Natural fiber जो है बेटा, वो obtain होता है plants और animals से. Synthetic fibers जो है, that is made by man in our laboratories by using certain chemicals. And few examples of natural fibers are cotton, silk, wool. Okay, these are the examples of natural fibers. While some examples of synthetic fibers is polyester, rayon, acrylic. These are all your, synthetic fibers or which are made by man. So two types of fibers are there. Natural, synthetic, which is also called as man-made. Now coming to the synthetic fibers. देखिए सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं बेटा, वो पॉलीमर्स से बने होते हैं. किससे बने होते हैं? दे आर मेड विद फ्रॉम पॉलीमर्स. पॉलीमर्स का मीनिंग होता है, पॉली मीन्स मेनी एंड मन मीन्स यूनिट. तो इनके अंदर एक ही तरीके की यूनिट होती है, ठीक है, एंड दैट वन सिंगल काइंड ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हम इसको मोनोमर को अच्छे से समझते हैं. एज आई टोल्ड यू, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें रिपीटिंग यूनिट होती है. सपोज करिए ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं. ये जो छोटी छोटी यूनिट्स आपको नजर आ रही है, ये है मोनोमर. ओके, द स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर. अब जब इस स्मॉल यूनिट को हम आपस में ज्वाइन करते हैं बेटा, ओके, स्मॉल यूनिट्स वी आर ज्वाइनिंग देम, सी वी आर ज्वाइनिंग देम, सो एक यूनिट बनती है. सो स्मॉल यूनिट्स दे आर फॉर्म्ड टू फॉर्म अ पॉलीमर. Okay, so I hope you understood what is a polymer now. Polymer means a large unit which is made by joining the small units. ठीक है? So monomers को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? Polymers. और हमारे synthetic fibers क्या है?
दे आर मेड विद पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स से बने हुए हैं. ओके ओके फाइन. सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज, जैसा हमने कहा कि ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ा जाता है, मोनोमर्स को जोड़ा जाता है, एंड वी मेक पॉलीमर्स, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. इस यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. सो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब हम छोटी यूनिट्स को जोड़कर बड़ी यूनिट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं. अब जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज द एग्जांपल इज पॉलीइथाइलीन. पॉलीइथाइलीन या पॉलिथीन. पॉलिथीन जो हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है, पॉलिथीन के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है आपकी इथीन या इथाइलीन. सो अब क्या होगा यहां पर, लेट्स सपोज ये इथीन है. सो इथीन को हम ज्वाइन करेंगे. They will be joined together. Ethene will be joined together to form polythene. Okay. So the repeating unit of polythene is ethene or ethylene. Right? Okay. Now ये polymerization है बेटा. This is of two types. This polymerization can occur in two ways. One is linear polymerization. ठीक है. One is linear polymerization and second is cross-linked polymerization. देखिए, जब हम सीधे सीधे यूनिट्स को एक चेन में ऐड करते हैं वन आफ्टर द अदर, ये जो ज्वाइनिंग होती है वन आफ्टर द अदर, जिससे एक सिंगल स्ट्रेट चेन बनती है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन. सो लीनियर पॉलीमराइजेशन में सिंगल चेन बनती है, सीधी चेन बनती है, स्ट्रेट चेन बनती है. ठीक है. और जब हम मोनोमर्स को ठीक है, मोनोमर्स को जब हम क्रॉस लिंक करते हैं, जैसे इसमें देखिए मोनोमर्स आपस में क्रॉस लिंक्ड है, आपस में कहीं भी जुड़ गए हैं, क्रॉस लिंकिंग है, लाइक दिस, देयर इज कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां, कभी यहां. सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन. ओके. So there are two types of polymerization. One is linear polymerization, जहां छोटी छोटी यूनिट्स जो है वो आपस में ज्वाइन होंगी और एक स्ट्रेट चेन बनाएगी. That is called as linear polymerization. और जब जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं बेटा वो आपस में क्रॉस लिंक्ड होंगी, टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी हुई होंगी, then we call it as cross linked polymerization. Okay, that is called as cross linked polymerization. Okay, and polymerization will form सिंथेटिक पॉलीमर्स. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स बनाएंगे हमारे. सो लेट्स रिपीट, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं. नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो हमें केमिकल्स से सिंथेसाइज करने पड़ते हैं. जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं बेटा वो किससे बने होते हैं? वो पॉलीमर से बने होते हैं. ठीक है. ओके. और पॉलीमर्स के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स. ठीक है, जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स. और जब मोनोमर्स मिलकर बड़ी चेन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. ओके, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. Okay, so let's come to your homework for today. First of all, you will make notes of this topic. You will read the page numbers 37 and 38. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, you can share your queries and problems with me. Okay, dear students? Okay, so bye everyone.